Good morning, my dear student. Today I am going to discuss about class 11th history, chapter 3. Your chapter 3 is an empire across three continents. In this chapter, we have discussed in our previous class, in my previous video, I have already taught you about that the other topics like economic expansion, controlling workers, Roman administration, women property rights, etc. Where we have seen that the changes which introduced in the Roman Empire. When we discuss about that, the boundary of Roman Empire, it was wide stretches from Europe to Africa and Asia. Among three continents, this empire was spanned. In my last video, I have discussed the social hierarchies. In this topic, social hierarchies, I have discussed that the society divided into first, third century AD, four part, and then after we have seen that 4th century AD, the society divided into three parts. First part, I have discussed that the patrus, it means the member of senators. Second part, they were equities, they were the horse riders. Third, the middle class peoples, the workers, and the fourth, they were slaves. But after some time, after 100 years ago, we have seen the social scenario that has changed. Society divided into three parts. First and second part merged in one, and third part became second part, and fourth part changed as a third part. We have discussed all things. और फिर हमने वहाँ बात की कि किस तरीके से उसका विकास हुआ. और 5th सेंचुरी के एक राइटर्स जो ओलम्पियाडोरस था, वो लिखता है कि किस तरीके से also an ambassador tells us that the aristocracy based on the city of the Rome drew annual incomes up to 4,000 if of gold. फिर जो सेकेंड क्लास के लोगों की जो हैसियत स्थिति बदल रही थी, सैलरी सोने में जो वो अपनी इनकम पा रहे थे, जिससे उन्होंने प्रॉपर्टी बना ली और सोसाइटी में एक मजबूत स्थान बना लिया. इस तरीके से अब वो भी क्लेम करने लगे अपर क्लास के लोगों की तरह. यहाँ पे थोड़ा डिस्प्यूट दिखता है. तो हायरार्की को हमने कई तरीके से पढ़ा, हर एंगल से हमने इस पर विचार किया. और फिर ब्यूरोक्रेसी में करप्शन पे बात की कि ब्यूरोक्रेसी में ये लोग थे तो काफ़ी करप्शंस हुए. एंड करप्शन वाज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द रोमन एम्पायर ड्यूरिंग 4th and 5th century AD. Emperor also aware of that. He tried to solve that problem, but he was not success because corruption एक ऐसी समस्या बन गई थी रोमन एम्पायर के लिए जो ना ख़त्म होने वाली थी. और आज भी करप्शन के मामले में वर्ल्ड वाइड लेवल पे समस्या तो बनी ही हुई है. अब बात करेंगे हम आज लेट एंटिक्विटीज़ पे. लेट एंटिक्विटीज़ इट मीन्स लेट बाद का, एंटिक्विटीज़ मतलब पूरा काल. बाद की जो स्थिति है, बाद का जो समय है, उसके बारे में बात करेंगे. कह रहा वी शैल conclude this chapter by looking at the cultural transformation of the Roman world in its final centuries, late period in the evolution and breakup the Roman Empire, and they refer broadly to be the 4th to 7th centuries. The 4th century itself was one of the considerable the ferment, both culture and economic. At the cultural level,
The period saw the monumentous development in the religion life. The religious life changed with the Emperor Constantine declined to make Christianity an official religion, and with the rise of Islam in the 7th century. But there were equally important change in the structure of the state that began with the emperor, the Diocletian, 284 to 305, and it may be best to start with this. Here we shall going to read about that the later periods, the culture and the changes which introduced in the Roman Empire, especially 4th century to 7th century, where we have seen that in particular that area there were two religions introduced. First, that Christianity, that is ancient religion, and second, that in the 7th century the new religion emerged in this area, that was the Islam. The Christianity and Islam and their conflicts, what was the result? These are all we will discuss our next chapter, Central Islamic Land. But here I want to inform you, author also want to inform you that the 4th century to 7th century there were the major changes introduced in particular that land. The two religion introduced, Christianity and Islam. Author want to inform you that we shall conclude the chapter by the looking at the cultural transformation of the Roman world in its final centuries. आथर कहना चाहता है आपसे, लेखक बता रहा है कि इस अध्याय के अंत में हमने रोमन साम्राज्य की अंतिम शताब्दियों में उनके सांस्कृतिक परिवर्तनों पे ध्यान देंगे। हम किस तरीके से उनके कल्चर चेंजेस आए, बदलाव कैसे हुआ। कहता है परवर्ती पुरा काल, लेट एंटिक्विटीज़ में शब्द का जो प्रयोग है, लेट एंटिक्विटी जो वर्ड का यूज किया गया है, ये प्रयोग रोम साम्राज्य के उद्भव, विकास और पतन के इतिहास को उस अंतिम एक दिलचस्पी अवधि का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो मोटे तौर पे 4वीं से 7वीं सदी तक फैली हुई थी। कहता है लेट एंटिक्विटीज़ का मतलब ये है कि इसमें आथर ये बताना चाहता है कि इस वर्ड का यूज करने का मतलब हुआ कि हम रोमन साम्राज्य के उत्थान से लेकर पतन तक, मतलब ओरिजिन से लेकर डिक्लाइन तक की पूरी स्थिति को एक्सप्लेन करेंगे, कंक्लूड करेंगे। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ लेट एंटिक्विटीज। इट मीन्स व्हेन वी यूज द पर्टिकुलर वर्ड लेट एंटिक्विटीज, यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी आर गोइंग टू रीड। वी आर गोइंग टू रीड the origin to decline, the whole history of the Roman Empire. That word uses late antiquities. एक शब्द लेट एंटिक्विटीज से शब्द को एक्सप्लेन किया जाता है। ये कहता है कि यहाँ तक 4th सेंचुरी में स्वयं भी अनेक सांस्कृतिक और आर्थिक जो परिवर्तन हुए, हलचल आई, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण था, जिसमें एक था सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा ईसाई धर्म को राजधर्म बना लेने का निर्णय। 4th सेंचुरी की एक सबसे बड़ा बदलाव आया। 4th सेंचुरी में जो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन थे, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को क्या बना लिया, राजधर्म बना दिया, रॉयल रिलीजन के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। ये एक बड़ा परिवर्तन था 4th सेंचुरी में। और दूसरा जो परिवर्तन था वो 7वीं सदी में इस्लाम का उदय था। 7th सेंचुरी में इस्लाम आ गई, लेकिन राज्य के ढांचे में भी उतने ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए जितना हमें ये दिखाई देते हैं। कहता है आगे कि ये परिवर्तन सम्राट डायक्लेशियंस के समय से प्रारंभ हुआ। सम्राट डायक्लेशियंस ने देखा कि साम्राज्य का विस्तार बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत विस्तृत एरिया पे ये रोमन एम्पायर फैल चुकी है। उसके अनेक प्रदेशों का सामरिक आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्व था, स्ट्रेटेजिकल वे से, इकोनॉमिकल पर्पज से। दैट वाज द वेरी इंपॉर्टेंट देयर स्टेट विच वाज सिचुएटेड वेरी फार, बहुत दूर जो स्थित थे, उनके महत्व को डायक्लेशियंस ने समझा और फिर इसलिए उसने उन हिस्सों को छोड़कर साम्राज्य का थोड़ा छोटा बना लिया जो दूर के हिस्से थे, जो काफ़ी उसके ऐसा उसके अकॉर्डिंग वो उसके लिए यूजफुल नहीं थे। उसको छोटा कर सीमित करके राज्य का आकार तो छोटा किया। उसने साम्राज्य की सीमाओं पर किले बनवाए, प्रांतों का पुनर्गठन किया, रीऑर्गेनाइज देयर स्टेट। ही मेड द वेरियस फोर्टिफिकेशन ऑन द बाउंड्री ऑफ देयर एम्पायर। साम्राज्य की सीमा पर फोर्टिफिकेशन कराया, दुर्ग बनवाए, और सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि इनका पुनर्गठन किया, राज्यों का पुनर्गठन किया। सैनिक असैनिक कार्यों को अलग कर दिया, सेना के कार्य
और जो सामान्य कॉमन पीपल के काम थे उनको अलग अलग डिवाइड कर दिया, कौन व्यक्ति क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा। इस चीज़ का क्लियरिफिकेशन उसने करने का प्रयास किया डायक्लेशियंस ने। डायक्लेशियंस इस मामले में दूरदर्शी था, इसीलिए उसने साम्राज्य की सीमाओं को कम किया। साथ ही डायक्लेशियन ने सेनापतियों को, जो ड्यूकस ड्यूकस वर्ड का इस्तेमाल किया गया, ड्यूकस मतलब सेनापति, कहता ड्यूकस की स्वायत्ता प्रदान कर दी दूर दराज के क्षेत्रों में। कह रहा है स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट दैट बिगेन विद द एम्परर द डायक्लेशियन 284-305 एट मे बी बेस्ट ऑफ द स्टार्ट विद दिस। एक नए तरीके से उसने साम्राज्य का विस्तार किया। ड्यूकस को उसने अधिक स्वायत्ता प्रदान कर दी, जिससे सैन्य अधिकारी अधिक शक्तिशाली हो गए और एक शक्तिशाली समूह के रूप में उभर के सामने आए। तो इस तरीके से हमें बदलाव का जो स्वरूप रोमन एम्पायर में दिख रहा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमें इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आगे के पैराग्राफ में और ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करेगा। इफ़ यू विल रीड द पैराग्राफ then you can easily understand that what author want to inform you, that which type of changes introduced in the Roman Empire, कौन सा बदलाव हुआ, कैसा हुआ, सारी चीज़ों पे डिस्कस करने का प्रयास ऑथर ने किया है। कह रहा था ओवर एक्सपेंशन had led to Diocletian to cut back by abandoning the frontiers, recognize the provincial boundaries, and the separate civilians from the military functions, the granting greater autonomy to the military commanders, ducas, who now became a more powerful groups. Constantine, to consolidate some of these changes and added other of his own. His chief innovations were in the memory shape, where he introduced a new the denominations. The solidus, I think you are familiar with the word solidus, the coin of 4.5 grams of the pure gold that would fact outlast the Roman Empire itself. Solidus were minted on a very large scale and their circulation ran into millions. The other area innovations was the certain of the second capital of the Constantinople at the site of the modern Istanbul in Turkey and the previously called the Byzantium, surrounded on three sides by the sea. As the new capital required a new senate, the 4th century was a period of rapid expansion of the governing classes. The monetary stability and the expanding population stimulated economic growth, and the archaeological records so considerable the investment in the rural establishment, including the industrial, the installations like all presses and glass factories, in newer technologies such as screw, pressure, and multiple water mill, and in the revival of the long distance trade with the East. Here, that is the very important things we are going to read. The over expansion had led to the Diocletians to the cutback by the abounding territories with little strategic economic values. कहता है कि ओवर एक्सपेंशन जो साम्राज्य का बहुत बड़ा फैला हुआ था, डायक्लेशियंस ने उसको कट बैक किया, छोटा किया। एबॉन्डिंग द टेरिटरीज, छोटे छोटे राज्यों में बांटा, राज्य का पुनर्गठन किया। लिटिल स्ट्रेटजीज एंड इकोनॉमिक वैल्यूज़, उनको राजनीतिक आधार पे, उनको सामरिक व्यवस्था के आधार पे, उनकी आर्थिक विशेषता के आधार पे उनको सीमित किया, उनको सुरक्षित किया। डायक्लेशियंस आल्सो fortified the frontiers, the reorganized the provincial boundaries and the separate civilians from the military functions, the granting the greater autonomy to the military commanders, ducas, who now became a more powerful group. कह रहा ड्यूकस को जब सेनापति के रूप में उसने स्थापित किया, उनको अधिक पावर दिया, अब वो एक मजबूत ग्रुप के रूप में सामने आए। कॉन्स्टेंटिन जो कंसोलिडेट थी सम ऑफ दीज चेंजेस एंड एडेड अदर सो हिज ओन, यहाँ से उसने बदलाव किया। कॉन्स्टेंटिन ने
इनमें से कुछ परिवर्तनों का पुख्ता बनाया, अपनी ओर से कुछ परिवर्तन भी किए। उसके द्वारा मुख्य रूप से जो परिवर्तन था वो मौद्रिक क्षेत्र में था, क्वाइंस के क्षेत्र में था। सॉलिडस के बारे में हम लोगों ने बात की थी। सॉलिडस जो प्योर गोल्ड मेटल था, 4.5 ग्राम का। कह रहा है सॉलिडस नाम का एक नया सिक्का चलाया जो 4.5 ग्राम का शुद्ध सोने का बना था। ये सिक्का रोम साम्राज्य समाप्त होने के बाद भी चलता रहा। इसकी लोकप्रियता इतनी अच्छी रही कि काफी दिनों तक चलन में रहा। यह सिक्का रोम साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण सिक्का था। ये सॉलिडस सिक्के बहुत बड़े पैमाने पर ढाले जाते थे और लाखों करोड़ों की संख्या में चलन में भी थे। कॉन्स्टेंटाइन का एक अन्य जो नया चार आया, जो उसने बदलाव किया, नवाचार था, एक दूसरी राजधानी उसका निर्माण करना। कॉन्स्टेंटिनोपल ने एक नई राजधानी बनाई। नई राजधानी थी कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल जहाँ तुर्की में आजकल इस्तांबुल नगर बसा हुआ है, वहीं पर उसने कॉन्स्टेंटिनोपल नगर की स्थापना की, एक नया राज्य बनाया, एक नई राजधानी बनाई। पहले इसे बाइजेंटियम कहा जाता था। यह नई राजधानी 3 ओर से समुद्र से घिरी हुई थी। इट मीन्स इट कवर्स द 3 ओशन बाउंड्रीज। 3 तरफ से समुद्र था और ये समुद्र होने का मतलब था कि द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्टिकुलर दैट प्लेस इज दैट कैन चेंज दैट स्टेट एज ए मार्केटिंग हब। ये प्लेस, ये स्टेट अपने को मार्केटिंग हब के रूप में चेंज कर सकता था बिकॉज ऑफ द गुड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। सी रूट इज अवेलेबल फ्रॉम 3 साइड्स, so that's why the Constantinople is the very most important city became later in the Roman Empire। जो नई राजधानी बनी, जो कॉन्स्टेंटिनोपल इसको बनी, तो उसका अपना एक अलग महत्व था जिसे बाइजेंटियम कहते थे। कहता है आगे, चूँकि नई राजधानी के लिए नई सीनेट की भी जरूरत थी, इसलिए 4th सेंचुरी के शासक वर्गों में बड़ी तेजी से विस्तार हुआ। मौद्रिक स्थायित्व और बढ़ती हुई पॉपुलेशन के कारण आर्थिक विकास में तेजी आई। पुरातत्वीय अभिलेखों से पता चलता है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से मालूम चलती है कि औद्योगिक प्रतिष्ठान सहित ग्रामीण उद्योग धंधों में व्यापार के विकास में पर्याप्त मात्रा में पूंजी लगाई गई। इसमें तेल की मिलें, शीशे के कारखाने, पेंच की प्रेस तथा तरह तरह के पानी की मिलें जैसी प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण है। धन का अच्छा खासा निवेश पूर्व के देशों के साथ लंबी दूरी के व्यापार में किया गया, जिससे एक ऐसे व्यापार का पुनरुत्थान हुआ। खूब व्यापार में प्रगति आई, नए नए फैक्ट्री लगी, नए नए चीज़ों को लगाया गया और इससे रोमन व्यापार काफ़ी प्रॉपर डेवलप फॉर्म में दिखाई देता है। कहता है इस तरह का जो परिवर्तन आता है, रोमन एम्पायर में जो बदलाव आए, वो काफ़ी कुछ मैसेज देता है, सूचना देती है। All of these carried over into strong urban prosperity that was marked by new form of the architectures and excavated architecture and excavated the sense of luxury. The ruling elites were wealthier and more powerful than ever before. In Egypt, hundreds of papyri survive from these later centuries, and they shown as the relatively affluent society where money was an extensive use and ruler state generated vast economic in gold. For example, Egypt contributed taxes over 2.5 million soldats a year, roughly 35,000 ibs of gold. In the region of the Justinian in the 6th century, indeed large part of the Near Eastern countryside were more developed and densely settled in the century. This is the social background against which we should set the central development of this period. Here, author want to clearly explain that the social condition and tax system
कह रहा है कि जो बदलाव हुआ, ये जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आई और नई टेक्नोलॉजी से जो ट्रेड का काफ़ी विकास हुआ, दूर दराज के क्षेत्रों तक लोगों ने जो इंटरकनेक्ट हुए, इससे खूब लोगों को लाभ हुआ, पैसे मिले, व्यापार में काफ़ी उन्नति हुई और इसके फलस्वरूप जो शहरी संपदा थी उसकी समृद्धि अत्यधिक वृद्धि हुई। जिससे क्या हुआ, जिसे स्थापत्य कला, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के नए रूप में विकसित हुए। लोगों में भोग विलास के साधनों में भरपूर तेजी आई। लोग क्या हो गए, कह रहे द मार्क्ड अ न्यू फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर एंड एक्स्ट्रावेगेंट सेंस ऑफ लग्जरी। लोग लग्जरी लाइफ जीने लगे, भोग विलास में विलीन हो गए। शासन करने वाले कुलीन पहले से कहीं अधिक धन संपन्न और शक्तिशाली हो गए। मिस्र में परवर्ती शताब्दियों के व्यापारी इस पौधों के पत्तों पर लिखे वो सैकड़ों दस्तावेज मिले। द हंड्रेड एंड थाउजेंड डॉक्यूमेंट्स विच found, and behalf of that they can clarify that this class become very prosperous and they involve in the luxurious life. भोग विलास के साधनों में अपने को क्या किया, लीन कर लिया। धन संपदा शक्तिशाली और ज़्यादा पावरफुल भी हो गए। इसके एविडेंस मिस्र के जो हमें व्यापारी घास से बने हुए पत्ते थे, कागज़ थे, उससे हमको प्रॉपरली इसकी सूचना मिल जाती है। इसकी प्रॉपरली इंफॉर्मेशन हमको वहाँ से प्राप्त होती है। कहता है जिससे इस जो डॉक्यूमेंट थे उससे पता चलता है कि तत्कालीन समाज अपेक्षाकृत अधिक खुशहाल था, जहाँ मुद्रा का व्यापक रूप से इस्तेमाल होता था, क्वाइन का व्यापक रूप से चलन था, ये सर्कुलेशन में थी क्वाइन, और ग्रामीण संप्रदाय भारी मात्रा में सोने के रूप में लाभ कमाती थी। रॉ मटेरियल दे करके गांव के लोग अधिक से अधिक मात्रा में ह्यूज अमाउंट में गोल्ड प्राप्त करते थे, गोल्ड क्वाइन प्राप्त करते थे। उदाहरण के लिए 6th सेंचुरी, 6ठी शताब्दी में एक जो दिखाई देता है कि दौरान जस्टिनियन के काल में अकेला मिस्र प्रतिवर्ष 25 लाख सॉलिडस, लगभग 35,000 पाउंड सोना, 25 लाख सॉलिडस, इतनी बड़ी मात्रा में सोना प्राप्त कर रहा था। गांव का एरिया, रूरल एरिया, अर्बन एरिया से, ये अपने महत्वपूर्ण बात थी। कह रहा है कि जो 25 लाख सॉलिडस के अधिक धनराशि करों के रूप में देता था गांव के लोग, ये जो 25 लाख सॉलिडस थी गांव के लोग कर के रूप में सेंट्रल ट्रेजरी में जमा करते थे। अब आप कल्पना कर लीजिए, यू कैन इमेजिन कि उनकी इनकम कितनी रही होगी जब वो एनुअली करीब 25 लाख सॉलिडस, करीब 35,000 पाउंड सोना नेशनल ट्रेजर में जमा कर रहे थे। तो निश्चित रूप से उनके आर्थिक विकास में उन्नति हुई, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट शो कर रहा है। रूरल एरिया में काफ़ी बड़े पैमाने पर इसका विकास हुआ। आगे कहता है कि निसंदेह पश्चिमी एशिया के बड़े बड़े ग्रामीण इलाके 5th और 6th सेंचुरी में आज से 20वीं शताब्दी की तुलना में भी कह रहा है कि अधिक विकसित और घने बसे हुए थे। आज जो गांव बसे हुए उसकी तुलना में जो 5th और 6th सेंचुरी के जो विलेज थे वो अधिक डेंसली थे, अधिक डेवलप थे और अधिक प्रॉस्परस थे। सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर इसकी अवधि में आगे चलकर सांस्कृतिक परिवर्तन में काफ़ी बदलाव हुआ। आगे कहता है, देखते हैं, कहता है द ट्रेडिशनल रिलीजियस कल्चर ऑफ द क्लासिकल वर्ल्ड बोथ ग्रीक एंड रोमन had been the polytheist, that it involved the multiplicity of the cults that included both Roman, Italian gods like Jupiter, Juno, the Minerva and Mars, as well as the numerous Greek and Eastern deities worshipped in the thousands of temple, shrine and the sanctuaries throughout the empire. Here, that is the author want to inform you about their worship, their faith and belief. author कहता है कि यूनान में और रोम वासियों की जो परंपरा थी, इनमें धार्मिक सांस्कृतिक जो पॉलिथीज्म की बात आई, बहुत सारे देववाद, बहुदेववाद, ये पॉलिथिस्ट थे, बहुदेववादी थे।
दैट इट इन्वॉल्व द मल्टीपल सिटी ऑफ दिस कल्ट्स। कहता है कि ये लोग अनेक पंथों उपासना पद्धतियों में विश्वास करते थे और जुपिटर, जूनो, मिनर्वा, मार्स जैसे अनेक रोमन इतालवी देवताओं और यूनानी तथा पूर्वी देवताओं की पूजा भी किया करते थे, जिसके लिए उन्होंने साम्राज्य भर में हजारों मंदिर और मठ बनवा के रखे थे। श्राइन्स एंड टेम्पल्स दैट वर बिल्ड बाय देम that fulfill their religious needs. That is the very important in the excavation. That was excavated at the various sites where we found that Roman temples. The god and deities, they were located particular that place. उत्खनन में मिले वो सारी चीज़ें इसके आधार पे कह रहा है कि वहाँ के लोग जो ग्रीक देवता को, रोमन देवता को, इटली के देवता को मानते थे, जुपिटर, जूनो, मिनर्वा, मार्स और इस तरह के बहुत सारे देवी देवताओं को जो पूरे प्रांत में पूजे आते थे, इन लोगों ने इसको पूजा। कहना थाउजेंड ऑफ टेम्पल, श्राइन्स एंड स्ट्रक्चर थ्रू आउट एम्पायर, पूरे पूरे इस एम्पायर में हजारों हजार मंदिर के और मठ स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। कहता पॉलिथिस्ट हैड नो कॉमन नेम और लेबल टू डिस्क्राइब देमसेल्फ। The other great religious traditions in the empire was Judaism. कहता है कि ये बहुदेववादी स्वयं को किसी एक नाम से नहीं पुकारते थे। They were not in recognize himself particular one names. कई नाम थे, कई नामों से। रोमन साम्राज्य में एक बड़ा धर्म यहूदी धर्म था, जुडिज्म था, लेकिन यहूदी धर्म भी एकास में यानी विविधताहीन नहीं था, मोनोलिथ नहीं था। अर्थात परवर्ती पुरा काल में यहूदी धर्म में अनेक विविधताएं मौजूद थी, बहुत सारे बदलाव थे, बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देते हैं। कहता है कि 4th सेंचुरी टू 5th सेंचुरी साम्राज्य का ईसाईकरण हुआ, क्रिश्चियनाइजेशन हुआ और एक क्रमिक और जटिल परिवर्तन था। बहुदेववाद, पॉलिथिज्म विशेष रूप से पश्चिमी प्रांत में आसानी से गायब नहीं हुआ, बल्कि ईसाई धर्म प्रचारक वहाँ प्रचलित बहुदेववादी मत मतांतरों तथा धार्मिक रीति रिवाजों का लगातार विरोध करते रहे। इस तरीके से वहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रहा था, विकास हो रहे थे, उनमें जो चीज़ें दिख रही थी, ये प्रदेश बदल रहा था, बड़े पैमाने में इनका बदलाव दिखाई दे रहा था। तो इस तरीके के जो चेंजेस हमें दिख रहे थे, जो बदलाव दिख रहे हैं, जो क्रिश्चियनिटी का एक्सपेंशन दिख रहा है, वो वहाँ के जो पॉलिथिज्म के कॉन्सेप्ट को चेंज नहीं कर सका। जो जुडिज्म के लोग थे वो मोनोलिथ थे। मोनोलिथ की मीनिंग क्या है देख लेते हैं। मोनोलिथ द लिटरली अ लार्ज ब्लॉक ऑफ स्टोन बट द एक्सपेंशन इज यूज्ड टू रेफर टू एनीथिंग, फॉर एग्जाम्पल society or culture that takes the variety and is all of the same type। मतलब मोनोलिथ क्या है? कहता है मोनोलिथ का जो मतलब है, मोनोलिथ का जो तात्पर्य है, वो एक बड़ी चट्टान का टुकड़ा होता है, परंतु इसका प्रयोग यहाँ पे मानव की विशेषताओं, मानव इकाइयों के लिए किया गया है। हम ये कह सकते हैं कि समाज अथवा संस्कृति एकास्म है। इसका अर्थ है कि इसमें विविधता की कमी है और इसकी आंतरिक में एक रूपता है। मतलब आंतरिक रूप से ये एक रूप है, लेकिन ये बाहर से भिन्न भिन्न प्रकार का है, डिफरेंट टाइप्स का है। क्रिश्चियनाइजेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिश्चियनाइजेशन, इसको भी देख लेते हैं। ईसाईकरण का क्या मतलब है? कहता है क्रिश्चियनाइजेशन द प्रोसेस बाय विच द क्रिश्चियनिटी स्प्रेड अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द पॉपुलेशन एंड बिकेम द डोमिनेंट रीजन। कहता है ईसाईकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा ईसाई धर्म भिन्न भिन्न जन समूहों के बीच फैलाया गया और वहाँ का प्रमुख धर्म बना दिया गया। क्रिश्चियनाइजेशन का मतलब लोगों को जीते गए क्षेत्रों में अपने धर्म को, जीते गए क्षेत्रों पे इस धर्म का इम्प्लीमेंटेशन कर देना, इम्पोज कर देना। क्रिश्चियनिटी के लोगों ने जिन जिन क्षेत्रों को जीता, उन क्षेत्रों के लोगों को ईसाई बना दिया। दैट इज द मीनिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी। थर्ड वर्ड है लैटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटी? लैटी
द ऑर्डिनरी member of a religious community as opposed to the priest or clergy who have official position within the community. लेटी एक सामान्य वर्ग का ग्रुप था, सामान्य लोगों का एक ग्रुप था जो धार्मिक रूप से प्रधान पृष्ठ की जो स्थिति थी, जो लोग बड़े अपने को मान लेते थे, उनका इन लोगों ने विरोध किया. दैट इज कॉल्ड लेटी. देयर इज 3 वर्ड, 3 डेफिनेशन. ओके, आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम फिर रिलीजन को जोड़ते हुए फिर इस पर बात करेंगे. ओके, गुड बाय एंड टेक केयर.